symposium on harassment, नारी शक्ति जागृति मंच कठुआ। आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं, चेहरे पे मुस्कान और हाथों में गुलदस्ता लाए हैं। Now I request District Social Welfare Officer Mr. Abdul Rahim ji and Mrs. Sushma Mahajan to present a bouquet to SSP Kathua Mr. R.C. Kotwal. मात अपने नूर से कुछ इस तरह भर दे दामन, हे मात अपने नूर से कुछ इस तरह भर दे दामन, तूफान हो या आंधी चले पर रोशनी जलती रहे। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर रेवर्ड गेस्ट, रिस्पेक्टेड एसएसपी सर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, प्रिंसिपल सर, एडवोकेट मिस अपू सिंह, चीफ प्लानिंग ऑफिसर, एसएचओ विमेन पुलिस स्टेशन Mrs. Anuradha, District and Information Officer Mr. Neeraj Bhargav, Mrs. Manisha Gupta, and all the other guests to please come on the stage for lighting of the lamp. May I welcome our chief guest in today's function, SSP Kathua, Shri R.C. Kotwal ji. Sir, it is a great occasion on the part of Government Degree College Kathua, especially the students and the faculty members of this institution, to have your benign presence in this awareness function being organized by NGO Nari Shakti Jagriti Manch Kathua. Sir, so far as this schedule is concerned, that is already very hectic. I know that you have to perform so many duties, so many obligations are there. But I think I am really thankful for the time you spared for this institution. And sir, I have been in this institution for the last 3 months, and I am highly thankful to our esteemed SSP Kathua that he has visited this institution for the second time. It's a really big occasion on the part of the students and faculty members of Government Degree College Kathua. Women are sexually harassed in their workplaces and even their home by many of the relatives too. Today, let's say about it and say it loud and clear. Sexual harassment is not a joke at all, as we think. Like many people say that sexual harassment is people do for their fun. Like rapes, we say about it. Even 3 months to girls and 8 months girls are getting raped, and so easily for the men. That's all I'm saying. But let me ask, what do you mean by sexual harassment? We all know its definition and meaning. But why don't we discuss about it? That's the question arises. We don't discuss about it because the word is so creep to discuss about it. No one in this world deserves to be, getting sexually harassed, whether men or women, whether men. Yeah, you heard correctly, whether men. It's not important that only women are getting harassed. Even the men are also getting harassed in this world by many, like emotionally harassed or mentally harassed. In this world, everyone has the right to live freely without getting sexually harassed, getting bullied or discriminated against, and that's why sexual harassment is illegal. माँ बाप के दुख को समझे, इतनी समझदार होती हैं बेटियाँ। असीम प्यार पाने की हकदार होती है बेटियाँ। शुभ प्रभात, मैं प्रियंका शर्मा जीडीसी की छात्रा नारी शक्ति पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप इन पंक्तियों पर गौर करेंगे। महिलाओं की इतनी बुरी हालत क्यों किए जा रहे हो, किसी को मार रहे हो, किसी को जला रहे हो,
क्यों खेल रहे हो इनसे इतने खौफनाक खेल, क्यों खेल रहे हो इनसे इतने खौफनाक खेल। किसी को कोठरी में बंद, किसी को कोठरी में बंद, किसी को लटका रहे हो। हैवनियत की तो हद हो गई, हैवनियत की तो हद हो गई, इन्हें दबोचे जा रहे हो, इन्हें दबोचे जा रहे हो। बलात्कार जैसे घिनौने काम, बलात्कार जैसे घिनौने काम तुम क्यों किए जा रहे हो। क्या शर्म सी नहीं आती तुम्हें, क्या शर्म सी नहीं आती तुम्हें, क्यों इन्हें पीटे जा रहे हो। बिना मतलब क्यों इन्हें जमीन पर घसीटे जा रहे हो, बिना मतलब क्यों इन्हें जमीन पर घसीटे जा रहे हो। कदर नहीं कर सकते इनकी तो, कदर नहीं कर सकते इनकी तो, कदर क्यों उतार रहे हो, कदर क्यों उतार रहे हो। घुटन भरी जिंदगी में इन्हें क्यों धकेले जा रहे हो। Trying to grab you without your consent, that is included as one. It's also counted as if someone is continuously staring at you, so that is also counted as one. Also, the perpetrator tries to display offensive and rude material so that others can see it. It also tells that you are being harassed. It can impact the offender, not. It can't impact the offender, but the victim is affected severely. It may stress out the victim, or they may start getting anxiety and depression. They may start withdrawing from social situations. So you can see, if they are starting withdrawing from social situations, it means that they are being harassed in their mental. They are getting a mental trauma inside their body, inside their brain. They are getting away from their happy life. मुस्कुरा कर सब दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। हर पग को रोशन करने वाली उस शक्ति का नाम है नारी। आज भी उसके हाथ में गज जलाने की डोर। ये किसने कहा कि नारी कमजोर है, आज भी उसके हाथ में गज जलाने की डोर है। अगर एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तब एक आदमी ही शिक्षित होता है, लेकिन जब एक औरत को शिक्षित किया जाता है तब एक पीढ़ी शिक्षित होती है। स्त्री कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। स्त्री कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कहकर बचपन से डराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कहकर बचपन से डराया जाता है। मैं सुमेघा शर्मा आज आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके बारे में हम समाज में बात करने से शर्माते और हिचकिचाते हैं। वह विषय है यौन उत्पीड़न। मैं भोर कली सांझ तक रोज कुचल दी जाती थी, मैं भोर कली सांझ तक रोज कुचल दी जाती थी, पागलपन के पांव तले बेखौफ मसल दी जाती थी। मैं वही आवाज हूँ, मैं वही आवाज हूँ जो पेट से बोला करती थी। कल तक मैंने गाया था कि भ्रूण हत्या पाप है, पर अब ऐसा लगता है कि उस बाप ने उपकार किया था जिसने अपनी बेटी को कोख में ही मार दिया था। वरना किसी चौराहे पर गर्म खून से सड़ जाती वो दूजी निर्भया गुड़िया, या फिर दामिनी बन जाती वो दूजी गुड़िया निर्भया, या फिर दामिनी बन जाती वो। नेहा शर्मा, साक्षी चिप, माधवी देवी, कंचन, क्या देखते हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कितना जरूरी है ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन? देखिए, ऐसा है कि नारी शक्ति मंच जो एक एनजीओ मैडम सुषमा चलाती हैं कठुआ में, उन्होंने डिग्री कॉलेज कठुआ के कोलैबोरेशन के साथ आज हरासमेंट अवेयरनेस का एक कैंपेन किया यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और उसी के सिलसिले में हम लोग भी आए थे। चूँकि डिग्री कॉलेज कठुआ में 2000 से ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो हम सबको लगा कि यहाँ पे जाना चाहिए और बात करनी चाहिए। और जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, वन स्टॉप सेंटर यहाँ बनने जा रहा है जिसमें कलेक्टिवली वुमेन रिलेटेड जितनी भी वायलेंस और जितने भी इश्यूज़ हैं दे हैव बीन ब्रॉट ऑन टू वन रूफ, और वहाँ पे वो जा सकते हैं। वुमेन पुलिस स्टेशन जैसे हमारे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे आने वाले टाइम में यहाँ पे
जो हमारी बेटियां हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनमें हमने अवेयरनेस भी जनरेट की है। बहुत सारी स्कीम्स का, बहुत सारे इश्यूज़ का लोगों को पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज़ द बेस्ट प्लेस टू टेल द पीपल के यहाँ पे आप अपने किसी भी ग्रीवांस को, किसी भी हरासमेंट को, अवेयरनेस के लिए अगर आपको कोई नहीं है तो ये इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं और कहाँ पे वो जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके सिलसिले में आज मैं भी आया था और यहाँ पे बच्चों और स्टूडेंट्स के साथ बात करके, यहाँ के प्रिंसिपल साहब से और इनके स्टाफ के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कितना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 10% का राइज हुआ है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। तो क्या देखते हैं इन कार्यक्रमों को और इस चारदीवारी के बाहर कहाँ तक ले जाएं? मुझे लगता है कि आई डोंट हैव दी एग्जैक्ट फिगर्स, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, बट कठुआ में एटलीस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, पिछले कुछ सालों में इसकी रिपोर्टिंग बढ़ी है। वो जो आप राइज़ की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कई बार पहले शायद अनरिपोर्टेड था और अभी चूंकि इसकी रिपोर्टिंग बढ़ी है, निर्भया केस के बाद बहुत सारी गाइडलाइंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स की तरफ से, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट्स की तरफ से, इवन पुलिस में भी बहुत सारे इन इश्यूज़ को सीरियसली लिया जा रहा है। तो इसलिए शायद वो नंबर ऑफ़ केसेस जो बढ़े हैं, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल इसमें उतना ज़्यादा जो शार्प प्राइज या वॉरिंग साइन जो है वो अभी तक नहीं है। बहरहाल हमारी सोसाइटी बहुत ही पीसफुल और बहुत ही हमारा एक फैमिली स्ट्रक्चर है जिसके तहत हम लोग चलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं आगे जाके कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं। मैं सुषमा महाजन, चेयरपर्सन नारी शक्ति जागृति मंच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा, हमारी संस्था जो है हर तरह के मुद्दे को उठाकर उसका अवेयरनेस का कैंप लगाते हैं। जहाँ किसी भी तरह का, जैसे हमने वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं, एंटी ड्रग डे सेलिब्रेट करते हैं, इस बार हमने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जो कि हमारी महिलाओं के साथ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी भी तरह का कोई भी जो हरासमेंट है अगर किसी के साथ होती है, उसके लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमने जीडीसी कठुआ में अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किया, जो कि सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अवेयरनेस जो है एक ऐसी एक कहते हैं कि इसके द्वारा हम कोई भी प्रोग्राम है जो सफल बनवा सकते हैं। अंत में मैं फिर से जीडीसी कठुआ के प्रिंसिपल, उनके स्टाफ, बच्चे सभी का तहे दिल से हमारी संस्था शुक्रिया अदा करती है और आगे भी हम कोशिश करेंगे ये प्रोग्राम रचना जी और उनके स्टाफ के साथ मिलकर करते हैं।